the most beneficent, the most merciful. Respecting Ms. Hasima Qureshi, Mr. Sahid, Mr. Akbar, and Mr. Asif Masood Khan, we warmly welcome you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Ayush, and today I am offering you my service as a State Secretary. So, for the current start of our function, I'll start with the holy name of Allah, and I would like to call Mr. Muhammad Liaka for a session of Holy Quran. And for the translation, Ms. Fatma Asif and Ms. Ajay Said, English and Urdu respectively. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na laka dhikrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Name of Allah Almighty, the All-Merciful, the Very Merciful. Have we not caused your bosom to be wide open for you, and we removed from you your burden that had almost broken your back, and we did high your name. So, undoubtedly, along with the hardship, there is ease. Undoubtedly, along with the hardship, there is ease. So, when you are free from collective services, toil hard in worship, and towards your Lord, turn with eagerness. Thank you. अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपका सीना आपके लिए खोल नहीं दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से भारी बोझ उतार दिया? बस हकीकत ये है कि ने तोड़ दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुष्ट, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद कर दिया। बस हकीकत ये है कि तंगी के साथ आसानी भी है, बेशक तंगी के साथ आसानी भी है। बस जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हो तो इबादत की मुशक्कत में लग जाएं और अपने रब ही की तरफ मुतवज्जा हो जाएं। खत्मुर रसूल मौला कुल जिसने वदनाए सुबह खत्मुर रसूल मौला कुल जिसने तुम्हारी राह को बख्शा फरोगे वादी सीना. To perform as short last prophet peace be upon him, I would like to call Mr. Seher Wakil.
the mother of our little angel, Muhammad Simon. I would like to call our little angel to give a warm welcome to everyone present here, gratify them for the effort and trial with the preparation. Give a big applause. حصريا على قناة المنشد محمد المقيد. يا هلا 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 حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم بالحب اجتمعنا وربنا يحييكم مرحبا ويا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا مرحبا ويا هلا فيكم انتم منا واحنا فيكم بالمحبة نحييكم يا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا يا هلا ويا هلا ويا هلا ويا هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا حن قلبي على جمعة الخير هلا. Now I would like to introduce our special guest, Ms. Naseema Qureshi. She is a venture capitalist and the owner of successful business in the United States of America. For the past 25 years, she has worked with the Way to Happiness Foundation in Los Angeles. She has appeared on national TV in Sri Lanka and Nepal, hosted talk shows in PTV and Metro in Pakistan, and helped many nations in Europe, the Middle East and South America implement the TWTH, the Way to Happiness program. The Way to Happiness Foundation is actively working in 165 countries and book has been translated in 110 languages. Ma'am, we are welcome you. Please come on the stage. Good. So, as she told you, I'm here from USA. I'm born in Pakistan and I have been in USA for a long time. And I'm affiliated to an organization called the Way to Happiness Foundation. You hear me? Values of society. तो अगर मैं उर्दू भी बोल सकती हूँ और पंजाबी भी. So anyway, my purpose here to visit Pakistan is to help Pakistan, especially our new generation, our children. कि अगर हम आज अच्छे इंसान बनाएं उनको तो कल हमें एक अच्छी नेशन मिल सकती है. Do you agree with me? Yeah. So this is the purpose to come here, and the organization I have been working with for last 25 years is called the Way to Happiness Foundation, and purpose is to raise the moral values of the society. So I'm going to show you some slides. Okay. This is the foundation we have. This is the building of the foundation we have in Los Angeles. Okay. This is the Way to Happiness offices that forward the book into circulation across all sectors of society. As a result, people world over, from heads of state, mayors, CEOs of Fortune 500 companies to doctors, lawyers, ये वो लोग हैं जिनको हम चाहते हैं. हर तरह के लोग शामिल हैं. उसमें बिलियनर भी शामिल हैं, उसमें CEO भी शामिल हैं. Not like we are only dealing with the rich people, okay? But the purpose is same.
is to increase the awareness of moral values. The Way to Happiness book, so this Way to Happiness book is actually very common sense. ठीक है ना? कितने लोगों को यहाँ पता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए? हाथ उठाएं। ठीक? बहुत सारे लोगों को पता है कि सच्चाई के साथ जीना चाहिए, ठीक है ना? सबको पता है कि we respect the religious belief of others. सबको पता है कि हम दूसरे इंसान से ऐसा ही बर्ताव करें जैसा हम अपने लिए पसंद करते हैं। So ये किताब जो है बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंस है। But what we do, we make it practical. We make it practical. We remind you the things. अगर ये सारी चीजें होती हमारी सोसाइटी में तो there wouldn't be a problem. But there are a lot of problems, right? So what we are doing, we are just trying to remind these common sense guide thing, and we are trying to make it implemented in our real lives. That's the whole purpose. This is inside of the building. We have 21 chapters, so there is a slideshow about each chapter of the book. Okay? This is a printing shop. You can make this book your own. You can put your picture, you can put your logo on this book, and you can make this book your own and give it to other people. So the Way to Happiness has been distributed more than 128 million copies so far in the world. And more than 39,000 organizations have made the book their own, with their own logo, with their own picture. Okay? And 15 million students around the planet using the Way to Happiness book right now. Okay? And this book has been translated into 117 languages, which is Guinness World Record. Now we are dealing with the schools. So we provide tools to teachers so they can use this book in classes, right? So these are the we provide a whole lesson plan so they can use this book in classes. The game is we use one precept every week or every month, depending on themselves, and we practice it. We practice just like, so it becomes nature, second nature, just like brushing your teeth or brushing your hair, become a second nature to you. So it's become the second nature to you that you follow these chapters. Right? These are the 21 precepts in the book. Take care of yourself, be temperate, don't be promiscuous, love and help children, honor and help your parents, set a good example, seek to live with truth, do not murder, do not do anything illegal, support government design and run for all the people, do not harm a person of goodwill, safeguard and improve your environment. Do not steal, do things to others that you would not do like them to do to you. Try to treat others as you would want them to treat you. Flourish and prosper. Okay?
So you can see these are very simple things, right? And everybody knows them, but we do not have everybody practicing them. So what we are trying to do, we are trying to make it practice in our life, so we have the better society. क्योंकि society जो है वो individual से बनती है. If we make individuals better, society will become better. Okay? I'm going to show you 3 videos which shows 3 different chapters of this book. Okay? What is the theme of the 3 chapters? So let's watch those videos. So there is a book, page 3 on this book, and it says, why I give you this book. By the way, किताब उर्दू में भी मौजूद है, ठीक है? And it says, the reason I give you this book, because your survival is important to me. That's the only reason you give this book to somebody. Because you want them to survive better, you want them to do better wherever, whatever, in their life. Now, in order to understand how to use this book, I want you to think of an example when you were not making any mistake, you were not doing any wrong, but there were other people in your life who were doing wrong and you got affected. कि आप सही थे, आपने कुछ गलत नहीं किया था, मगर लोग थे जो कि सही नहीं थे और उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ. तो कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकता है कि जब आप सही थे मगर क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद थे जो कि गलत काम कर रहे थे या गलत चल रहे थे और उनकी वजह से आपको नुकसान हुआ. ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है लाइफ में? ऐसा होता है ना? So give me an example. Any one of you. अस्सलाम वालेकुम. जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहते थे कि आप पुत्रों की पूजा मत करें, वो कहते थे कि आप गलत हैं, तो अल्लाह ताला का तब हुक्म आया था कि आपने अपने यानी उन्होंने अपने बाप की इज्जत की भी, ना कि उनको नाफरमानी की, लेकिन उन्होंने प्यार से उनको गाइड किया. Respected parents and students, आपके लिए मिस नसीमा कुरैशी आई हैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर पूरा काम होना है. आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर ये उस तरह से मुमकिन नहीं हो सकेगा. तो काइंडली जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर कोई एक्टिविटीज़ या वो कोई आप लोगों से व्यू जानना चाह रही हैं तो इट शुड बी पार्टिसिपेटिव. अगर आप लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो फ़ायदा नहीं हो सकेगा हमें. बिल्कुल इस पूरे सेशन का फ़ायदा उस तरह से हमें नहीं हो सकेगा. बिल्कुल आई होप कि आप सब लोग बहुत पार्टिसिपेट करेंगे. बिल्कुल ये बात उन्होंने सच कही मिस सना ने कि मैं यहाँ सिर्फ लेक्चर देने नहीं आई हूँ और कहने नहीं आई हूँ कि आप ये करें ये ना करें. मुझे आपके व्यूज़ जानने हैं ताकि आप अपनी तौर पे इस किताब को समझ सकें अपने लिए और अपने माहौल के हिसाब से इसको अप्लाई कर सकें. ठीक है ना? सो वी एग्री ऑन दैट? ओके गुड. सो वीडियोज़ आर रेडी. लेट्स वॉच द वीडियोज़. ओके. Okay, that's it. Just like I showed you. Yeah. Push the button. Yeah. And gently shift it in the first. Okay, that was good. Alright, look this way. Look this way. You can get some more. No, what are you doing? Hey, it's okay. You're doing it. You're driving.
बच्चे को गाड़ी ड्राइव करना पेरेंट्स सिखा रहे हैं, तो अगर उसमें भी कोई मिस्टेक है तो इन स्पाइट ऑफ उनको स्कॉल्डिंग देम, उनको डांटने की बजाय आपको उनको लेके चलना है, उनके साथ उनको हौसला देना है। बच्चे लाइफ में बहुत बार डाउनफॉल का शिकार होते हैं, बहुत बार ग्रेड्स डाउन आ जाते हैं, लेकिन हमें बच्चों को साथ लेके चलना होता है, ये समझाना होता है कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ लाइफ का हिस्सा है। तो ये सब चीज़ों को, इसी के लिए कुछ वीडियोस भी इसके अंदर प्लान है, तो काइंडली इनको बहुत गौर से देखिएगा। मिस नसीमा जो क्वेश्चंस आप लोगों से करना चाहें वो पार्टिसिपेटिंग रहिएगा। जज़ाकल्लाह। Now look at this guy. What are you gonna do, kid? Go home. It's hopeless. Yeah, do something with your life. Leave. You're looking stupid, man. Just give it up. मुझे लगती है, क्योंकि आप देखें ना, अगर हर शख्स ये कहे कि पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में वो नहीं है, हम मानते हैं कि चीज़ें ख़राब हैं, ठीक है, मगर किसी को तो पहला स्टेप लेना पड़ेगा उनको ठीक करने के लिए। ठीक, हम ये नहीं कह सकते कि जब भी गवर्नमेंट आएगी वही करेगी, किसी एक को पहला स्टेप लेना पड़ेगा। और वो आपने देखा कि बच्चा वो ख़राब एरिया उसमें पेंट करने जा रहा है और लोग उसको कह रहे हैं कि don't do that, are you crazy or something, मगर he did that and other people start joining. So किसी एक को पहले स्टेप लेना पड़ेगा and then it will change. That's my message. So और किसी अच्छी चीज़ को करने के लिए हमेशा आपको थोड़ा सा दूसरों से डिफरेंट होना पड़ता है। यू विल अग्री विथ मी, राइट? क्योंकि अगर सभी एक जैसी चीज़ें कर रहे हैं और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा और थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ करनी पड़ेगी ताकि वो माहौल चेंज हो सके। ठीक है, तो ये बुक जो है बेसिकली वेरी प्रैक्टिकल, मैं बार बार ये कहूँगी कि प्रैक्टिकल। तो आपसे मैं दोबारा वही सवाल पूछूंगी जो मैंने वीडियो से पहले पूछा था कि थिंक ऑफ वन एग्जाम्पल के जहाँ आप बिल्कुल ठीक थे, आपने कोई गलत काम नहीं कर रहे थे। हम सबसे गलतियाँ होती हैं लाइफ में, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे थे मगर देयर वर पीपल और देयर वाज अ पर्सन, देयर वाज अ स्पेसिफिक पर्सन हु वाज रॉन्ग एंड उसकी वजह से आपको नुकसान हुआ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में हर शख्स को ये एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में। सो आई वुड लाइक यू टू शेयर सम एग्जाम्पल्स with me so I can tell you how to use this book in those circumstances. Okay? मेरा पर्पस है कि वाकई आपकी लाइफ में आज की सेमिनार से, आज के इस सेशन से कुछ चेंज आए और कुछ फ़ायदा पहुँचे। That's the only purpose I have. Okay? So tell me, any of the parents can share an example. पाँचों वक्त की नमाज पढ़ता था और इसके अलावा ईशा के बाद नमाज की तस्वीर डेली पढ़ता था। तो बहुत अच्छे ख्वाब भी मुझे आए इस दौरान। उसके बाद मुझे कुछ दोस्त ऐसे मिले जो कि मस्जिद में नहीं जाते थे, तो उनकी सोहबत में रहने से मैं खुद भी नमाज से पीछे हट गया। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा नुकसान हुआ मुझे कि मैं अल्लाह के बहुत करीब था, लेकिन सोहबत की वजह से, ऐसे दोस्तों की सोहबत की वजह से जो नमाज नहीं पढ़ते थे, मैं पीछे हट गया। तो ये मेरे साथ मेरा नुकसान हुआ है लाइफ में इस वक्त। Thank you.
share? Okay. So what I believe कि हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा होता है. I don't think so कि किसी को कोई गलत सोबत ना मिले, ऐसा कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान है, गलतियों का बदला है, गलती होती है. When I was in 10th class, मैं चुनिया से हूँ बेसिक, और यहाँ मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं मिल रही थी. बहुत से लोग ऐसे थे जो मेरे बाबा को, मेरी मामा को ये कह रहे थे कि लड़की को पढ़ा के क्या कर लोगे. एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने भी मान लिया कि इसको यूनिवर्सिटी में भेज के, कॉलेज में भेज के क्या करेंगे. तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड. लोग ही देख लें कि अच्छा काम बताते हुए यहाँ मुश्किलात आती हैं, तो करते हुए क्यों नहीं आएंगे. Accepted? Okay, so let's start. तो एक टाइम ऐसा आया कि मैं डिसअपॉइंट होगी बहुत ज़्यादा कि चलो भाई अब तो एक ही काम है कि 2 साल घर के बर्तन धोऊंगी, तीसरे साल फर्श धोना भी सीख लूँगी, चौथे साल कपड़े धोना सीख के शादी करा के आ गया. ये मैं सोच चुकी थी अपने 4 साल का प्लान. बट आखिरकार वो मेरे माँ बाप थे और लोगों से ज़्यादा उनको यकीन अपनी बेटी पे था, क्योंकि औलाद पे माँ बाप के अलावा यकीन कोई नहीं करता. मैंने एक बार फिर से कोशिश की कहने की कि मुझे थोड़ा करने दें, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना करने दें कि अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ. बहुत कोशिशों के बाद, बहुत रोने के बाद, मिन्नतें करने के बाद फाइनली मेरे खानदान वाले और वो लोग जो कहते थे कि रहने दें, उनको साइड पर रखते हुए मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि ठीक है, हमारी बेटी है कि थोड़ा तो करना चाहिए. उनके साथ साथ मेरे 2 मेंटोर, वो भी हम सबके दरमियान में ही हैं, मिस्टर आसिफ मसूद खान, मिस सना अकबर. मैं अपनी ज़िंदगी में इनका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, मुझे लगता है कि मैं इनका वो एहसान कभी भूल नहीं पाऊँगी. मेरे एक एक कदम पे साथ खड़े, सना भी साथ थी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी भी इनके काम, इनकी हिम्मतें करते गुजार दूँ तो वो एहसान नहीं चुका पाऊँगी जिन्होंने उस टाइम पे कर दिया मेरे पे. और साथ ही साथ जनाब आसिफ मसूद खान, मैं दिल से मशकूर हूँ जो उस टाइम में आपने मेरा साथ दिया और इस काबिल बनाया कि आप सबके सामने जो है मैं इस टाइम खड़ी हूँ. सो मेरा मैट्रिक का रिजल्ट आया और उसके बाद जो है मुझे एडमिशन मिला थी मॉडर्न कॉलेज में, और मुझे प्रिपेयर किया गया इसलिए कि मैं पढ़ूँ और कुछ बनूँ. हर दिन कुछ नया सिखाया गया. सीखते सीखते आई कंप्लीटेड माई FSC और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे स्कोर के साथ जो है मुझे लाहौर में एडमिशन हो गया. और वो एडमिशन मैंने ऑनलाइन कराया था बगैर बताए. बट जब मैंने वो एडमिशन करा लिया, स्लिप आ गई, तो मेरे पेरेंट्स को ये लगा कि हमारी बेटी ने करके दिखाया है तो एक और चांस देते हैं. तो आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम जूनिया, फ्रॉम द होल पंजाब यूनिवर्सिटी, फ्रॉम द होल एरिया ऑफ 2018 बैच पंजाब यूनिवर्सिटी में, और पूरे जूनिया में मैं पहली हूँ जिसे USA से डायरेक्ट कॉल आई. आई एम द ओनली वन एग्जिस्टिंग हियर इन द सिटी, इन द एंटायर यूनिवर्सिटी, कि जिसको USA की 3 डिफरेंट कंपनीज ने सेम टाइम में अप्रोच किया, और अब ये मेरे पे था कि मैं किसको ज्वाइन करना चाहती हूँ. एंड बच्चों ट्रस्ट मी, वो जो उस टाइम कहते थे ना ताटी कुड़ी की कर लेगी, वही आगे कहते हैं आई जरा अपनी कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ नौकरी ਵੇਖੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਲਵਾ ਦੇ. तो उनमें से एक मोहतरम को मैंने इंटरव्यू के लिए बुलाया, तो वो आके मुझे कंपनी में कहते हैं तू तो कुड़ी से तू की नहीं लग गई. मैं कहा तू भी पढ़ लेना सी. तो मसला ये नहीं होता कि आपके पास मुश्किलें नहीं आती, मुश्किलों से लड़ना सीखें. अगर एक दिन हिम्मत हार गए तो बच्चे सोच लेना सारी जिंदगी ऐसे टूटे पड़ेंगे कि कोई मुंह भी नहीं लगाएगा. और फिर आपको कि काश उस वक्त सोच लेती. अगर मैं भी आज ये कर लेती तो 3-4 आई थिंक मैं भी अपने छोटे छोटे बच्चे आपके साथ देखे वो पीछे सफाई कर रही होती. तो हमेशा कुछ करना सीखें, अपने बड़ों की बात माने, और आपके बच्चों का मुस्तकबिल जिनके हाथ में है यकीन माने, इत्मीनान रखिए. बहुत ही महफूज हाथों में आपके सामने एक लाइव
खड़ी हुई है और मुझे नहीं लगता कि इनके साथ के बाद जो है वो कोई भी एक बच्चा जो है वो अपनी मंजिल तक ना पहुंच पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो आज हम सीख रहे हैं मिस नसीमा कुरैशी, मुझे आज ये हो रहा है कि काश अभी मैं बच्ची होती, नहीं सीखती। ट्रस्ट मी, इतना अच्छा, इतना कुछ, यू आर एक्सट्रीमली लकी। मैं इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों सीखो, ये जो आपको आज मिल रहा है ये दोबारा मिले न मिले, लेकिन इन 2 घंटों को इस तरह सिर्फ वक्त कर दो ये सीखने के लिए। एंड इंशाल्लाह ट्रस्ट मी, जिंदगी के आखिरी लम्हों में जाके बहुत याद करोगे। थैंक यू सो मच। So just like Ashfar said, difficulties are part of life, right? मेरे ख्याल में कोई भी शख्स नहीं कह सकता कि उसकी ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है? तो ये किताब एक्चुअली आपकी रहनुमाई करती है उन मुश्किल लम्हात में कि आप किस राह को चूज़ करें, ठीक है? एक शख्स जो कि भूखा है उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो मजदूरी करके पैसा कमा ले या वो चोरी कर ले। कुछ लोग चोरी चूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग मजदूरी। तो जो मजदूरी चूज़ करते हैं वो ज़्यादा कुछ भी हो जाए उनकी ज़िंदगी हमेशा चोरी वाले से बेहतर होगी। डू यू एग्री विद मी? Yeah. So this book gives you very simple things which everybody knows. Everybody knows those things, but we are not applying in our life, and that's why society is not a better society. So so for our children who will be the nation of tomorrow, they are like कोरा कागज हैं वो लोग। Right now we can implement anything in their mind, अच्छी चीज़ भी और बुरी चीज़ भी। तो इससे बेहतर है कि हम अच्छी चीज़ डालें ताकि कल के इन्हीं लोगों ने मुल्क को चलाना है, हमने तो नहीं चलाना ना, तो कल के लीडर इन्हीं में से निकलेंगे। So this is what I am trying to achieve, okay? और आपके बच्चे साइंस पढ़ें, मैथ पढ़ें, आगे बढ़ें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, but this is something which gonna help them in their life. Is a character building. Character building needed for actual life. When you go out, you deal with people, you deal with work, you deal with life. There are difficulties and you need to make choices. What should I do? So this book helps you to make the correct choices at that difficult time. And that's what we are going to teach. Okay? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम उषा है, हाफजा बुशरा। तो मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ आपसे कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो ऐसे ही मेरा दिल किया कि मैं हिफ्ज़ करूँ। तो मैं जब हिफ्ज़ करने के लिए गई तो वहाँ पे मदरसा था एक, तो डिफरेंट माहौल था। तो जब मैंने हिफ्ज़ किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने डिसाइड किया कि आप नहीं कर सकती, इतनी बड़ी हो गई हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। तो मैंने कायदे आज़म का एक पढ़ा था, वर्ड पढ़ा था कि अपनी ज़िंदगी में इंसान नहीं का वर्ड निकाल दे तो आप हर सब कुछ कर सकते हैं। तो मैंने आज तक उसी चीज़ को फॉलो किया। फिर मैंने 1 साल में हिफ्ज़ किया। तो हमारे मदरसे में जब कुछ साहिबान जो कारी हज़रात हैं वो विज़िट के लिए आए, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्म था तो मैं यूनिफॉर्म के बगैर जाती थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं आई? तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं पहना। तो कहते क्यों? मैंने कहा मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा आप पहन के लिए ये है नहीं या बनवाया नहीं? तो मैंने कहा नहीं, मैंने बनवाया नहीं। तो जब वो विज़िट करके चले गए तो हमारे कारी साहब ने मुझे बुलाया और मेरी काफ़ी इंसल्ट की कि आपने ये कुछ और बहाना कर देना था कि आपने ये सच क्यों बोला कि आप पहन के नहीं आई। लेकिन मेरा मैसेज ये है कि जब हम जाते हैं दीन के मदारस में कहीं भी किसी जगह पे सीखने के लिए, तो मैंने सच बोला था कि मेरे पास यूनिफॉर्म नहीं है, मैंने नहीं बनवाया। लेकिन उस वजह से आज भी मेरे दिल में ये है कि मैं इन जगहों पे जाती हूँ तो मैं 100 दफ़ा सोचती हूँ कि मैं सच बोलूँ या झूठ बोलूँ। तो ये मेरा एक मैसेज है कि क्यों आप सच बोलने से रोकते हैं किसी को।
जब आप एक मैसेज दे रहे हैं कि दीन का काम कर रहे हैं, हमारे इस्लाम को मोटिवेट करने के लिए आप कहते हैं कि जी इस्लाम में ये हो रहा है, जब इस्लाम में ये सच बोलना है तो आप क्यों उसको झूठ पे मजबूर करते हैं कि वो झूठ बोले। और दूसरा मैंने ये कहना था कि आज मैं जिस स्टेज पे हूँ, मुझे भी मोटिवेट करने वाली मैम सना है। आज जिस स्टेज पे भी हूँ, कुछ हूँ, क्योंकि मैं लिखती थी तो वो मेरे खुले लिखने देते थे, हम गाँव से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे मुझे मार भी पड़ी कि आप क्यों लिखती हैं अपने शहरों में, रातों को क्यों लिखती हैं। लेकिन मैंने उनके परमिशन के बगैर रेडियो पे भी लिखा, मैंने शॉर्ट डाइजेस्ट पे भी लिखा, तो 2-3 साल पहले मेरा इंटरव्यू भी आया। तो आज भी जो कुछ हूँ मैं सिर्फ अपनी एक लगन की बदौलत हूँ, जो कायदे आज़म को आगे बढ़ था कि आप सब कुछ कर सकते हैं और यकीनन कर सकते हैं अगर आपके अंदर विल पावर है। और अभी जो मैं कुछ हूँ तो मैम सना की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। बहुत अच्छा लगा सबसे यहाँ पर मिलकर, और ख़ासतौर पे मैं सना का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अगर हम कहें कि लीडरशिप क्वालिटीज़, मोटिवेशनल स्पीकर, वो आपके सामने मिसालें मौजूद हैं, उन्होंने एलैबोरेट कर दिया है। आई डोंट नीड टू डू इट अगैन। सो ब्रिलियंटली शी इज़ कॉपिंग विद द सोशल, जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो रोकती हैं इंसान को, लेकिन वो उनसे उनको फेस करके, उनका मुकाबला करके बहुत अच्छे तरीके से ये स्कूल को चला रही है। और हर वो चीज़ या हर वो काम जब ये करती है हम इसको ज़रूर अप्रिशिएट करते हैं, उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं इसके साथ। सो बात हो रही है एक्चुअली हैप्पीनेस की। तो हैप्पीनेस की अगर बात करूँ तो जैसे ये मैम ने कहा, सो ओके, मतलब जब ये बात कर रही थी तो इनके जो आपने फील किया होगा कि इनकी आवाज़ में थोड़ा मतलब इमोशंस थे। सो हैप्पीनेस इज कंसर्न्ड एंड लिंक्ड विद इमोशंस। इट इज़ अ साइकोलॉजिकल स्टेट, इट इज़ नॉट अ फिजिकल स्टेट लाइक यू आर हैप्पी, यू आर स्माइलिंग। नॉट, हम लिख तो देते हैं बड़े आसानी से बी हैप्पी, लेकिन अंदर से कुछ दिल खुश ना हो तो वो हैप्पीनेस नहीं होती। हैप्पीनेस एक्चुअली एक इंटरनल फैक्टर है विच इज़ करेक्टराइज्ड बाय द फुलफिलमेंट, कॉन्टेंटमेंट। आप अंदर से मुतमईन है, आपका दिल मुतमईन है। ये हैप्पीनेस ये नहीं है कि आपके पास बेबहा दौलत है, बहुत ज़्यादा दौलत आ गई, आप बड़े बड़े अमीरों से जाके पूछे, वो उनके पास बहुत दौलत है लेकिन वो खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी। तो हैप्पीनेस ये जो है वो आपको किसी को मतलब कोई हेल्प करके एक खुशी महसूस होती है, बच्चों के लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। लाइक मैं एक वाक़या पढ़ रही थी, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया है तो आप बहुत सारे वाक़यात आपकी नज़र से गुजरते हैं। तो एक अमेरिकन था, तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर लास्ट स्टेज। तो वो मतलब उसने दुनिया जहान का इलाज करा लिया, तो उसको डॉक्टर्स ने कहा मतलब आप नहीं बच सकते, आप लास्ट स्टेज है आपकी। लेकिन उसने एक दिन क्या हुआ कि वो पाकिस्तान आया हुआ था, वो अचानक एक किसाब की दुकान पर गया, तो वहाँ पर उसने देखा कि एक जो वो किसाब है वो गोश्त जब बना रहा है तो उसके वो जो मतलब रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो लैदा कर रहा है। तो एक लेडी साइड पे खड़ी थी, वो शॉपर में इकट्ठे कर रही थी वो गोश्त के वो टुकड़े। तो उसके दिल में आया कि मतलब मैं इससे पूछूं कि ये क्या माजरा है कि तुम ये इकट्ठे क्यों कर रही हो ये इस तरह से। तो उसने पूछा, तो उसने कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है कि मैं गोश्त खरीद सकूँ, तो ये मैं ले जाती हूँ अपने बच्चों के लिए, फिर उनको पका के देती हूँ, हमारे घर तो महीनों सालों गोश्त ही नहीं बनता। तो फिर उस वक्त रोने लग गया और वो आदीदा हो गया। तो उसके बाद उसने उसके साहब से कहा कि ये लेडी जब भी आएंगी तो उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये गोश्त देना और ये रेगुलर देना, जब भी जितना भी मांगे या जितना भी चाहे। वो छोटी सी एक नेकी थी और यकीन करें उसके बाद वो कहता है कि मैं दिन ब दिन ठीक होता गया, मैं दिन ब दिन वो नेकी, उसको अंदर से वो जो हैप्पीनेस फील हुई थी ना उस वक्त, वो जो अंदर से उस वक्त खुशी महसूस हुई थी, वो चीज़ उसने वो पूरी ज़िंदगी पर वो कहते हैं मैंने बहुत सी काम किए लेकिन ये नेकी जो है ना, मैं इस पर मतलब कंटेंटमेंट वो जो फीलिंग थी वो आ गई। और वो जब डॉक्टर्स के पास गया तो वाकई उसकी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल सही आ गई और बिल्कुल वो ठीक हो गए। सो तो एक्चुअली मैं ये अपने मैसेज के थ्रू कन्वे करना चाहती हूँ कि जो हैप्पीनेस है ना ये एक नंबर 2 मैं मिस आयुष ने बोला कि मतलब वो जो बच्चों वाली मदर्स बैठी है तो आई टोटली डिसएग्री
कि मैं बच्चे वाली थी, मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताती हूँ। मैं ना मुझे ना ये सारी चीज़ें ऐसी लगती है कि अल्लाह ताला इज प्लानिंग ऑल द थिंग्स। मतलब सना उस वक्त ऐसे करने के बाद शी गॉट मैरिड, और मैं मतलब उस वक्त पढ़ रही थी, और मैं जिस यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स किया। तो फिर उसके बाद मैं सोचा कि मतलब काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात, और सना जो है वो एसएसटी बन चुकी थी इंग्लिश, और मैं उस वक्त जॉब भी अभी मेरे साथ नहीं कर रही थी। और भी मैं बड़ी हैरान हुई कि मतलब फिर मुझे सारा पता चला किस तरह से सना ने मेहनत की, हार्ड वर्क नेवर गोज रिवार्डलेस। आपको ज़रूर इसका जो है ना पता मिलता है। तो फिर इसने जिस तरह से मेहनत की, और माशाल्लाह से आपके सामने सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, मेरे माशाल्लाह आई हैव 3 किड्स, वो इधर ही पढ़ते हैं। तो मेरा मतलब 3rd पहली दफ़ा मैंने एमफिल में एडमिशन लिया। मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि तुम कहाँ कर सकती हो, नहीं तुम तो नहीं कर सकती एमफिल, नहीं तुम नहीं कर सकती, यू कैन नॉट डू दिस। मैं अपने भाई मेरा बैठा हुआ है, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो मेरे क्लासमेट और मैं, हम दोनों जो है वो जाया करते थे यूनिवर्सिटी, और मैं यकीन करें यहाँ पे लोकल बसों के धक्के खा के बड़ी मुश्किल से स्कूल से ऑफ मिलता, और बड़ी मुश्किल से बातें सुन के सब टीचर्स इवन लेग पुलिंग हो रही होती थी। लेकिन वो क्या था, उस वक्त वो अंदर से खुशी महसूस हो रही थी कि मेरा एमफिल हो जाएगा और मुझे ये डिग्री मिल जाएगी, और वो एक पैशन था। और बच्चों के साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया, आई वाज द टॉपर ऑफ द क्लास, और सारे टीचर्स ने मुझे अप्रिशिएट किया। और मतलब बहुत ज़्यादा सारे टीचर्स अप्रिशिएट करते थे कि बच्चों के साथ आपने जो है एमफिल किया है, और बहुत आपकी जो है ना। अच्छा, यहाँ पे एक वीडियो मैम ने दिखाई थी, इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी। वो उसमें जो लास्ट में वीडियो थी, मतलब वो उसमें अगर हम अब्राहम मास्लो की हायरार्की पढ़े हैप्पीनेस की, तो उसमें सबसे जो लोएस्ट पॉइंट पे होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, और उसके बाद फिर होता है बिलोंगिंग्स, और फिर उसके बाद जो है वो आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लास्ट में आती है। तो मतलब देखें आप, बिलोंगिंग्स, फैमिली, हम फैमिली के साथ इस तरह हमारा रवैया कैसा है। मतलब मेरा ख्याल है 80% टाइम बच्चा घर फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। ज़्यादा जिम्मेदारी पेरेंट्स पे है। हम अगर टीचर्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, टीचर्स ने इनको सारा कुछ इनको दिमाग में डाल के भेजना है, तो बिल्कुल ये गलत होगा। हमारे ज़िम्मे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमने फुलफिल करनी ही करनी है। पेरेंट्स इनसे बाद हमें इतना गुस्सा, बहुत ज़्यादा हम गुस्से में होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। बच्चा अपने मूड में आके कहता है मामा पापा, और हम उसको डांट देते हैं। उस वक्त उसका कॉन्फिडेंस शैटर करता है, और उसके साथ बिलोंगिंग, उसके साथ अपने ताल्लुकात मजबूत करें। हैप्पीनेस उस वक्त ये चीज़ होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उस वक्त आएगी जब बच्चे खुद ब खुद जॉयफुल होंगे, वो इंजॉय करेंगे हर काम को। कई लोग चटनी के साथ रोटी खा के भी इतनी खुशी महसूस कर लेते हैं, जो बड़े मतलब इतने अच्छे लैविश खाने के बाद भी वो खुशी महसूस नहीं होती। तो बच्चों को खुश रहना, अपने जो गिवन एनवायरनमेंट है उसमें खुश रहना सिखाएं। बच्चों को ये बताएं कि हमें अच्छा, एक बुद्धिस्ट है, उसकी 69 ईयर्स ओल्ड वो है, और वो जो है उसका नाम है माइकल रिचर्ड। वो इस वक्त दुनिया का हैप्पीएस्ट जो है वो आदमी करार पाया है। और वो मतलब देखिए वो खुशी का राज क्या उसकी कि वो मेडिटेशन करता था, वो सोचता था, वो उसकी ताल्लुकात अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अल्लाह ताला के साथ इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो बहुत ही खुश रहता था। तो हम लोगों को चाहिए कि हम मेडिटेशन करें, बच्चों को भी खामोशी में रह के मेडिटेट करना सिखाएं, वो सोचें, वो समझें, और फिर वो फैसला करें। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरा टाइम शॉर्ट ऐसा है। Thank you very much. So as Bushra, the first lady, said that there were difficulties and all those, and she told that why people are telling to tell lie when our religion is telling to tell the truth. The problem is that everybody knows to tell the truth, right? But people don't apply. But we have a chapter here called Seek to Live with Truth. सही है? इसमें इस किताब में चीज़ों को इस तरह से बताया गया है कि कोई आपके कोई धौंस नहीं जमा रहा कि आपको ये करना ही करना है। ये बताया गया है कि ये रास्ता भी है और ये रास्ता भी है। अगर इस रास्ते पे जाओगे तो ये होगा, और अगर बुरे रास्ते पे जाओगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है? तो उन साहब जो कि कह रहे थे कि नहीं बोलो सच, उन साहब को ये किताब दी जा सकती है ताकि वो उनको हल करें, ठीक है? तो इस किताब को हम ऐसे फैलाते हैं कि जो जिसकी वजह से आपको नुकसान पहुंचा है आपकी ज़िंदगी में,
आप उसको ये किताब एज अ गिफ्ट दें, ठीक है? क्योंकि आप उसको मारें या लड़ें झगड़े जो भी करें, उससे उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, वो और धोन जमाएगा आपके ऊपर, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि हम उसको ये किताब दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी, उसकी ज़िंदगी में लाजमन कुछ गलत हो रहा है, जो वो गलत चीज़ें कर रहा है, तो ताकि वो अपनी ज़िंदगी को सही राह पे ला सके। हमारा पर्पस है, और आई एम श्योर किसी भी अच्छे इंसान का पर्पस है कि दूसरे की लाइफ बेहतर बनाए, ठीक है ना? इससे कोई फ़ायदा नहीं कि आप दूसरे की लाइफ अजीरन कर दें, तो उससे आप भी नुकसान में रहते हैं, वो दूसरा भी नुकसान में रहता है, ठीक है? और जैसे मिस आमना ने कहा कि उन्होंने टीचर्स के अलावा पेरेंट्स का भी हाथ है, तो इसीलिए आज पेरेंट्स को बुलाया गया है ताकि we have full agreement on this character building of your children, okay? And I'm sure you're gonna cooperate, okay? Thank you. That book, and you're gonna participate in it. So because as I said, ये सारा हम चाह रहे हैं कि practically implement हो, सिर्फ बातें ना हो, तो इनके बेस पे हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? Are you ready? Yes. Okay. Are you ready? Yes. You're excited, right? Yes. This is ready हो जाता है, we're gonna circulate this. आप सबके पास अभी ये बुक सर्कुलेट हो रही है, हर एक रो में अराउंड 2 बुक्स हम लोग भिजवा रहे हैं। आप प्लीज़ इसको एक बार देखें, गो थ्रू करें कि इसमें ऐसा क्या है जो आपको हेल्प करेगा अपने बच्चों का कैरेक्टर बिल्ड करने में। आप एक बार देखते जाएं और आगे पास करते जाएं। रेडी है? थोड़ा और ऊंचा बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। Parents, the book, the Way to Happiness book, which you can and you can give out to others also, and children are getting an activity sheet. So activity sheet में एक्चुअली आपको कुछ काम करना है, जो भी चैप्टर है उस बुक का उसको अप्लाई और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ग्रुप पहले आप वो काम करेंगे और उसके बाद ग्रुप लीडर यहाँ आएगा और बताएगा कि उसने एक्चुअली क्या किया और उससे क्या लर्न किया और कैसे वो अपनी ज़िंदगी में उसको यूज़ करेगा, ठीक है? इसके आपको आंसर करने हैं। हमारे वॉलंटियर्स अभी आपके पास आ रहे हैं, वो आपको ये फॉर्म देंगे, एंड प्लीज़ इसको पढ़िए और अंडरस्टैंड करके इसको फिल कीजिए। आपके पास जो बुक्स आई हैं प्लीज़ वो गो थ्रू करके आगे पास करते जाएं ताकि सब लोग देखें और उन्हें भी पता चल सके कि इसमें क्या है। प्लीज सर्कुलेट करते जाएं ताकि बाकी पेरेंट्स भी इससे फायदा उठा सकें। So I hope आप सबको फीडबैक फॉर्म मिल गया होगा। बिहेवियर क्या है। सेकेंड इज व्हाट डू यू थिंक इज अ बैड बिहेवियर। आपके मुताबिक एक बुरा बिहेवियर क्या है। व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे अहम चीज़ क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज बैड इन लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आपके मुताबिक कुछ बुरा क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज वंडरफुल इन योर नेबरहुड। आपके पड़ोसी और हमसायों में एक कोई भी अच्छी चीज़ क्या है। What do you think could be done to make Pakistan a better place to live? कि पाकिस्तान को बेहतर बनाना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए आपके मुताबिक जो आप सोचते हैं कि क्या चीज़ पाकिस्तान को रहने के लिए बहुत बेहतरीन बना सकती है।
most? किसके मशवरे को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? What you have problem in your neighborhood? Whom do you listen to? आपके अगर हमसाय में कोई भी मसला हो, किसको सुनना चाहेंगे आप सबसे पहले? On problem that concern the whole Pakistan, what do you trust the most to give advice? जो पाकिस्तान में मसले चल रहे हैं, आप किसको कंसीडर करेंगे कि सबसे पहले आपके एडवाइस दें? Which group help Pakistan the most? कौन सा ग्रुप पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होगा आपके अकॉर्डिंग? What kind of activities would you like to see in the area? आपके एरिया में आपके अकॉर्डिंग आप क्या चाहेंगे, कैसी सरगर्मियाँ होनी चाहिए? These are the 11 questions जिसको आपने फिल करना है. बहुत ही शॉर्ट फॉर्म थोड़े आंसर्स हैं, इसको आप जो है वो जल्दी फिल कर लें. उसके बाद आपका जो है वो आपका नेम, एज, सेक्स ग्रुप, ऑक्यूपेशन, फोन नंबर एंड एरिया ऑफ रेजिडेंस. फिल करना चाहते हैं आप इसको उर्दू में फिल कर सकते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं आप इंग्लिश में कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. जो आपको ज्यादा आसान कन्वीनियंट लगता है आप उसमें कर सकते हैं. करने को मिल रहा है, so try harder कि आप बहुत सोच समझ के इसमें कुछ लिखें. Looking good to you? Okay, so I want to tell you more what other countries I have done what work. Okay, I have been around the world. I have gone to Europe, Sri Lanka, Nepal, and many other countries, and I have done the same thing, same character building. So I'm going to show you about it, okay? Are you interested? Yes. Okay. We want some more vocal. Are you guys interested? Yes. Students? Hello? हमको बड़ा पसंद आ गया है कि उसको छोड़ना ही नहीं चाह रहे. ये एक स्टडी है जो कि यूएसए में है, एक स्टेट मिजोरी. वहाँ पर हमने स्कूलों में एक तजुर्बा किया था इस किताब के साथ, द वे टू हैप्पीनेस के साथ. वहाँ के स्कूलों में हमने 2000 स्कूल चूज किए और उनको हमने वे टू हैप्पीनेस की किताबें दी. Attention please. Excuse me everyone. So before पहले किताबें देने से पहले वहाँ पे स्टूडेंट्स वॉलेशन सुनती वो 516. वॉलेशन का मतलब है कि जो बच्चे गलत काम कर रहे थे, लड़ते थे आपस में, चोरी करते थे, इस तरह की चीजें, ठीक है, वो 516 were reported. And then we gave counselor and principal one book and one PPT. Okay? Next. And one book. Next. So देखिए जरा चार्ट देखिए. वॉल्यूशन 190 हो गए. कितना कम हो गया? 516 से 190. Did you see the result? So ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग प्रोग्राम है, इससे आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे कि बच्चे जो हैं सही चीज चूज करना शुरू करते हैं. ये बिल्कुल स्टडी की गई है वहाँ पे 2000 स्कूलों में यूएस के. नेक्स्ट. Parents, this is something really important for your kids. This is the globally मैंने जो काम किया है, ये देखिए ये सारी अवार्ड इस ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं, द वे टू हैप्पीनेस फाउंडेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन.
This is my work in 2006. पहले 2006 में. Next. Mayor Nasreen Jalil थी उस वक्त, so I did work with them. और एक न्यूज़पेपर में भी आया था. ठीक है. Next. ये हमारे सेमिनार हैं कराची यूनिवर्सिटी में. Next. ये लाहौर के स्कूलों में सेमिनार हमें दिए गए. नेक्स्ट. ये है रिकग्निशन लेटर हमें पाकिस्तान से मिले. आप देख सकते हैं रिकग्निशन लेटर हमें पाकिस्तान से किताब. नेक्स्ट. ईदी को कौन जानता है? मेरी ईदी साहब से मुलाकात हुई थी 2006 में और उनको ये किताब बेइंतहा पसंद आई थी. उन्होंने अपनी लगवाई इस किताब पे और उसको बिकवाया इस वक्त. फातिमा बजिया, she also appreciate her. Done? Yeah. Okay, good. So presentation are done. So I would like. So आपने देखा मेरा काम. अभी और बहुत है. मैं और मुल्कों में भी गई हूँ मगर ये कुछ झलकियाँ आप लोगों के लिए. Put your hand together, give applause. Complete हो गया. One by one teachers आपने present करने के लिए स्टेज पे भेज दिए. टीचर्स जिन बच्चों का कंप्लीट हो गया वन बाय वन उनको प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पे भेज दें. So here's Ayan with us, Ayan Ahmed. Clap for him. Assalamu alaikum. My name is Ayan. Assalamu alaikum. My name is Ayan Ahmed and I'm 13 years old and I am reading grade 7 in Myanmar School Studio Campus. Me and my group has decided that this page explains that parents should make a strong bond with their kids. I mean कि अगर किसी के बच्चों के grades low आ गए हैं, they have get low grades, so they should motivate them to achieve higher grade next year or in next exams. They should not be angry on them that they had low grades, they had put no attention on this exams. Thank you so much. So the next is Aisha Imtiaz in hijab Fatima. बच्चों आपकी क्लैपिंग की जरूरत है. अगला नंबर आपका है ना, तो फिर जब आप आओगे तो अगर क्लैपिंग नहीं हुई तो क्या होगा? बुरा लगेगा, उन्हें भी लग रहा है. एक अच्छा
reading grade 6. Today my topic is unfaithful. Don't be unfaithful. हमें एक दूसरे जिसका मतलब है हमें एक दूसरे के साथ इसका चीटिंग हमें एक दूसरे के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए. अगर जैसे कि फैमिली अगर हमारी फैमिली है तो हमें उसके साथ वफादार रहना चाहिए, चीटिंग नहीं करनी चाहिए. स्कूल में अगर कोई गलत बात हो रही है तो हमें बताना चाहिए, हमें बताना चाहिए. थैंक यू. My name is Fatma Asif. I am studying grade 3. Today my topic is be temperate. We have to choose easier ways. And if our thing is harder, we have to make it easier by ourselves. Like a donkey cart, if we put more stuff on a donkey cart, it will fall. It will not walk. It is big enough. So next is Fatima Atika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. My name is Fatima Atika. I am reading grade 7. Today my topic is help your parents. We can all the students help your parents in cooking, in laundry, in every work. So we cannot help in work your parents. हम help parents की काम के अलावा भी कर सकते हैं. हम उनको अच्छे अल्फाज से बुला के भी कर सकते हैं. हम उनका दिल दुखाए के बगैर उनका दिल खुश करके भी कर सकते हैं. हमें ये नहीं चाहिए कि हम काम ही करते रहे. हमें उनके पास बैठ के चंद अल्फाज प्यार और मोहब्बत भी करने चाहिए. थैंक्स. Assalamualaikum. My name is Amma. I am studying grade 6. Today my topic is take care of yourself. First of all, every person will take care of yourself. Get care when you are ill. Keep your body clean. Get rest. Early. Wake up early in the morning. Keep your. Next is Mr. Hasnat Ahmed. अस्सलामुअलैकुम पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स. ये जो बच्चे यहाँ प्रेजेंट करने के लिए आ रहे हैं, दे नीड योर मोटिवेशन. सो प्लीज़ आप लोगों का फोकस इनको चाहिए. आप लोग प्लीज़ इनको अपना फोकस भी दें, इनकी तरफ तवज्जो करें. आपको इनकी बात अच्छी लगती है तो उसको मोटिवेट करें ना. उनको आपको क्लैप कर देनी चाहिए मेरा ख्याल. ठीक है, तो सो प्लीज़ बी केयरफुल. Assalamualaikum. My name is Hasnat Ahmed. I am a student of grade 6. Today's my topic is unfaithful. Unfaithful means cheating. If we are unfaithful, we never got success in our lives. Always do dealings with others. If we are faithful, other people give us trust and respect. If we are unfaithful, Allah Almighty will angry with us. If we are faithful, Allah Almighty happy with us. Thank you. So the next is our very cute little angel Fatima Mansoor. Clap it. वो इतनी छोटी बच्ची है, उसको देखें. मतलब एक क्लैप तो बनता है. Assalamualaikum. Today my topic is be temperate. Be temperate का मतलब है चीजों को ओवरलोडिंग नहीं करना, रास्ते को भरते नहीं जाना. ऐसा
lot. Thank you. Next is Isha. आप 1 मिनट नहीं सोच लो, एक बार सोच ले बतानी है या नहीं? नहीं नहीं Assalamu alaikum. My name is Isha. I read in grade 7. Today my topic is B template. B template का मतलब है कि ओवरलोड नहीं करना. अगर गधा गाड़ी अगर हम उसके ऊपर ज़्यादा लोड रखेंगे तो जिसकी वजह से जानवर नीचे गिर सकते हैं. उनके अंदर भी जान है और हमारे अंदर भी जान है. अक्सर लोग समझते हैं कि जैसे उसके ऊपर ज़्यादा लोड रख देते जिसकी वजह से वो गिर जाता है, उनको चोट लग जाती है. थैंक यू. So the next is Ganya. बच्चों The people above can set a good example by doing their job well. हर शख्स अपने आप को अच्छा बना के एक good example दे सकते हैं. For example, can I help children? मैं बच्चों को उनके खेलने में मदद करूँगी और उनकी स्टडीज में मदद करूँगी. और इंडस्ट्रीज, हर शख्स को इंडस्ट्रियस बनना चाहिए. इंडस्ट्रियस मीन यूजिंग योर एनर्जी और एबिलिटी टू मेक समथिंग और गेट समथिंग डन. नेक्स्ट इज लिंदा नूर. इतनी अच्छी बातें बता के जा रही है. सिर्फ एक छोटी सी डिमांड है कि क्लैपिंग करना. सिर्फ इतनी अच्छी मिलियन ऑफ रुपीज की बातें इतने भी लोग फिर भी कोई नहीं बताएगा. इतनी अच्छी बात. जस्ट द डिमांड क्लैपिंग, ताकि थोड़ा मोटिवेट हो जाए. स्टेज पे आके बोलना कोई आसान बात थोड़ी ना होती है ना. तो एक बार अच्छी सी क्लैपिंग. My name is Linda Noor. I read in grade 5. आज का हमारा टॉपिक है Take care of ourselves. Take the brush. हमें दांत साफ करने चाहिए. कौन करे दांत साफ करने चाहिए? जो नहीं बोल रहा उसको लगता है कि नहीं करने चाहिए, है ना? करता नहीं. हमें हर हफ्ते के हफ्ते नाखून तराशने चाहिए. My name is Aliza. I am a student of grade 6 in Memar School Junior Campus. Today my topic is be competent. Be competent means मुकाबला करना, यानी इस काबिल हो जाना कि आप सब कुछ कर सकते हैं. अगर आपको टीचर ने कहा है कि आप हेडिंग दें तो आप हेडिंग को इतना खूबसूरत और इतना अच्छा बना दें कि देखने वाला हैरान रह जाए. और competent सीखने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं. एक लुक आप देख सकते, स्टडी एंड प्रैक्टिस. Assalamualaikum. My name is Ali Hassan. I read in grade 7. Today my topic is flourish. Flourish means to be success. इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा जीतते रहें. मुश्किलात आती हैं और वो आपको नीचे भी करती हैं, डाउन मतलब के नीचे गिराती हैं. अगर आप नीचे गिरते हैं तो ही खड़े होते हैं. जिस तरह मैम ने भी आपको बताया था कि मेरी भी फ्यूचर में कई मुश्किलात आई, लेकिन मैं आगे बढ़ी. तो
हमें भी अगर कोई भी मुश्किलात है तो हमें उसका सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू। And my topic is seek to live with that truth. मैं आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी की एग्जाम्पल देती हूँ। एक दफ़ा वो पढ़ने के लिए काफिले के साथ जा रहे थे, तो वो जा रहे थे तो उनको आगे से डाकू पड़ गए। तो वो काफिर थे तो सबको लूट लिया, मतलब लूट माल उनसे इकट्ठा कर लिया। तो जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारी आई तो उन्होंने आपसे पूछा कि आपके पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 40 दिरहम है। तो उन्होंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो वो कहता नहीं। तो फिर वो अपने मालिक के पास ले गए जो डाकू थे। तो जब ले गए तो फिर उन्होंने पूछा कि आपके पास कितनी रकम है? उसने कहा मेरे पास 40 दिरहम है। जब उन लोग उनके मालिक ने उनकी पॉकेट सबको चेक किया तो उनके पास 40 दिरहम भी निकली। तो उसके मालिक ने पूछा उनके कि आप झूठ भी तो बोल सकते थे। तो कहते नहीं। तो उसके बाद फिर वो जो डाकू थे वो मुसलमान हो गए और शेख अब्दुल जिलानी कादिर को छोड़ दिया। इसलिए हमें बात से ये सीख मिलती है, हमें हमेशा सच का ही साथ देना चाहिए और सच का साथ देने से आगे इंसान बढ़ता है। Assalamualaikum. My name is Harim Fatima. My topic is try to treat others as you would have them treat you. हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। हमें अपने बड़ों का एहतराम करना चाहिए। अगर हम अपने बड़ों का एहतराम करेंगे तो वो भी हमें अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो दूसरा हमारा इज्जत करेगा। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो दूसरी हमारा मदद करेगा। और अगर हम किसी का अदब करेंगे तो वो भी हमारा अदब करेगा। So अभी हमें ज्वाइन किया है मिस मलाइका ने डायरेक्टली फ्रॉम USA। वहाँ पे इस टाइम मिडल ऑफ नाइट 3 बज रहे हैं, बट सिर्फ हमारे बच्चों को सपोर्ट करके कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम करने के लिए वो अभी तक जाग रही हैं। एंड जस्ट शी ज्वाइन मिस मलाइका बेसिकली शी मूव टू पाकिस्तान विद हर हस्बैंड few years ago to help this country. He set up her office in Islamabad. He gave lectures and workshops to different schools and colleges and universities about the study technology, so that students are able to retain and use the information of study for the people and getting exact problem. This is exactly an honor to have her with us now. So उनके लिए give a big applause कि वो इतनी देर तक जाग रही है सिर्फ हमें सिखाने के लिए। Oh, very good. Okay, yes, my name is Maraika Qureshi, and I've been working with Mrs. Salah Farsi for a while now. Unfortunately, we were very challenged with the COVID situation, but now the COVID is handled, so we can continue. I'm the spokesperson for the Way to Happiness in Pakistan, which is a Khushi Kira. And Salah Farsi, of course, is the head of the chain of ISC International schools for yoga, and also other schools. She's been in education for many, many years. And for both of us, the future is very important to us, and that's why we want to help the children. And of course,
education in Pakistan. Well, thank you. Thank you so much. So I don't know how much time I have. I just wanted to share a little bit about the Way to Happiness, which is a common sense guide to living, modern day living, with all our questions, all our problems. How should we behave? How does it fit? How can we apply the Quran to our daily lives? And how can we be better people? And the Way to Happiness is like a stepping stone to the Quran, which gives like modern, like very simple, common sense guide to moral issues. So, for instance, one of the things of the Way to Happiness is be competent. And how can we be competent? Well, how we can be competent is by, first we have to look, then we have to learn it, and then we have to practice it. And a lot of times, the children, they just have to learn it, but they don't look for themselves. Once they've learned it, they don't practice it. And then once they get a job and they end up in an office somewhere, because I see a lot of people here from the RE/MAX office, so they end up in the business world, and you actually have trouble teaching them things because they actually are not that competent yet. And it comes back to to the businesses, to the managers in our businesses, who then have to re-educate the children or the new employee, because they weren't made competent. So the Way to Happiness gives like simple rules, what we can all follow to be more competent. Another thing is like what happens here in America a lot is that a lot of the theft in a business is actually done by the employees, not by customers. The employees, they say, oh, we need toilet paper, oh, we need coffee, and they take it from the business. So the Way to Happiness, of course, it's in the Quran as well. It says, do not steal. Well, that's what it says in the Way to Happiness too, because when you steal something, you're not going to feel good, you're going to have to hide it, you know, you're going to feel bad towards your employer. So there are all these negative things that happen when a person steals. So these are a few comments that I like to make. I don't know if there's any question or if there's a platform for questions, but I just really feel it's a very dear subject to me, and I know also for Sadaf, so I'm very glad that I'm part of this meeting. Thank you so much, ma'am. A big thanks from RE/MAX and from our schools. Your words are really moving, which means a lot to us. Thank you so much for completely our work. Oh, you're welcome. Thank you. It's my pleasure. Thank you very much, Ms. Kunaika. With this shortest possible time, you have given your precious time to us. I am very obliged and thank you very much for joining us. Thank you. Oh, you're welcome. Thank you. I hope you have a very nice conference. For me, it's like past midnight, so I'm going to go to sleep, but I really wanted to say a few words. So thank you for giving me the time, and I hope you have a wonderful conference. Thank you so much. Bye-bye. Assalamu alaikum. Bye-bye. Thank you, RE/MAX team, for joining us. आपका नाम क्या? So, we welcome Ali Abdullah, clapping. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ali Abdullah and I am a student of grade 7. Today my topic is practice. And a practice is a key of success.
if a man is intelligent that he doesn't practice, it can fail at a time. But if a man practice, it cannot fail. Thank you. We have another Ahmed with us. अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राना अहमद, मैं ग्रेड 2 में पढ़ता हूँ। Kill, not always any willing word. किलिंग उसे कहते हैं जैसे एक बंदा दूसरे बंदे को कत्ल कर रहा हो, तो हम डिपेंड नहीं कर सकते। थैंक यू। Assalamualaikum. My name is Glenn. I read in grade 3. Today our topic: do not murder. Murder is different from killing. Murder means to kill any other from on that any sense. For example, murder उसे कहते हैं अगर कोई किसी को बिला वजह मार रहा है, उसे मर्डर कहते हैं। Thank you. My name is Nancy and I read in grade 7. Today my topic is don't be degrade and be faithful. Faithful means loyal and true. Mothers and fathers and their children should be faithful to each other. इसका मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है क्लास में, तो उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसे डिग्रेड ना करें, बल्कि उसको हौसला देंगे। इंशाल्लाह अगली बार इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह अगली बार पास होएंगे और फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। तो हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। थैंक यू। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, हम जानते हैं कि आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन इस इवेंट को आज ऑर्गेनाइज करने का मतलब आपके बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना था और उनके अंदर ऐसी कैरेक्टर बिल्डिंग और कुछ ऐसी आदत को रूबरू कराना था जो अब के बाद डेफिनेटली स्कूल में तो होंगे और घर में भी जो है वो उनकी हेल्प कर सकते हैं टू मेक अ सॉलिड कैरेक्टर। तो हमारे साथ मैम सदफ हैं, उनकी स्पीच बिकॉज शी इज़ द मेंटर ऑफ मेंटर्स, तो उनकी स्पीच उनके वर्ड्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। शी इज़ द CEO of नीम ग्रुप कॉर्डोबा एंड मामार। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा सा और समय का मुजाहरा करें और उनके वर्ड्स जो उनकी बातें हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बट डेफिनेटली विल फॉलो। हमारे पास सिर्फ ये छोटे 3 बच्चे रह गए हैं, इनकी स्ट्रगल के बाद विल मूव फॉरवर्ड में कर। We have Bisam with us. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम बिसाम है, मैं ग्रेड 4 में पढ़ता हूँ। Try not to do thinking to other. You might not have to do to you. He is treating to take the chocolate of others. He is thinking that stretching is a bad habit. This is Ahmad Ahmad Khazar. Assalamualaikum. My name is Ahmad Ahmad Khazar. I am reading from grade 4. My topic is unfaithful. Unfaithful meaning is cheating. We should be happy and surrounding if we are unfaithful. We never so get the success. We never don't be unfaithful. Next is Muhammad Abdullah. Assalamualaikum. My name is Muhammad Abdullah and my topic is unfaithful. Faithful means cheating and fraud. These are very bad habits. If we are unfaithful, we never got success. We
HRCA का एक कंपटीशन भी हुआ था जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत सी नुमाया पोजीशन हासिल की। तो लकीली हमारे साथ मिसेस सदर शाहिद मौजूद हैं, तो साथ ही साथ जो है वो उनकी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी कर देते हैं। Miss Sadr Shahid is basically work as education consultant as observer in a variety of organizations in Pakistan as well as on global scale. She is the director of the Leading Edge Academic Network Lean and is dedicated to educating teacher, parent, community members and students in its circle. So give a very, very big hand to her. Assalamu alaikum. रबिशरहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों ने अपने प्रीशियस टाइम के साथ यहाँ पे बड़े पेशेंस के साथ बैठे रहे और हमने पूरी कोशिश की कि दुनिया भर में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कैरेक्टर बिल्डिंग में काम हो रहा है उससे हम आपके कैंपस को, मिस सना के कैंपस को अवेयर करें और एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज नज़र आए सोसाइटी में। For that reason, I have tried from last 2 or 3 years. I contacted Miss Naseema Qureshi. She came and she delivered whatever she has told me, told you all. I hope you can understand the message, and inshallah ta'ala, this will be implemented by the whole team, and effectively you will see the change. Here I want to say one. Just give me a second. अच्छा, इतनी सारी बातें हो गई हैं कि मेरा ख्याल है कि मैं किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। बस एक मैसेज है मेरा, और जिनको जिनके अदबी शौक़ जिनके पास है या जो ज़ौक़ उनके पास है वो इस चीज़ को समझ जाएंगे, और जो नहीं समझेंगे मेरा ख्याल है कि वो दूसरे उनको समझा देंगे। इस पूरे प्रोग्राम का एक मैसेज है और वो मैसेज ये है, ज़फ़र आदमी उसको हरगिज़ न जानिएगा, ज़फ़र आदमी उसको हरगिज़ न जानिएगा, हो वो कैसा ही साहिबो फ़हमो ज़का, हो वो कैसा ही साहिबो फ़हमो ज़का, जिसे ऐश में यादें खुदा न रहे, जिसे तैश में खौफ़े खुदा न रहे। बीइंग अ मुस्लिम मैं समझती हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है। बीइंग अ पेरेंट मैं समझती हूँ ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये जो जनरेशन, ये जो नेमतें हमारे हाथ में हैं, इनको बेस्ट जो अपना आप दे सकते हैं वो प्लीज़ दें। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से जो कुछ भी इस वक्त बच्चे हमारे देख रहे हैं, ये पेरेंट्स बाय सेटिंग गुड एग्जाम्पल दे कैन हेल्प देयर चाइल्ड। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि जो भी किताब यहाँ पे आपके स्कूल में मिस सना की इंशाल्लाह भी मिस नसीमा कुरैशी एक सेट आपको देंगी। ये एक सेट पूरा कंप्लीट मिस सना के पास मौजूद होगा। पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आएँ, लाइब्रेरी से इसको इशू करवाएँ, इसको पढ़ें और अपनी ज़िंदगी को चेंज करें। अच्छा जी, सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि जो कुछ भी हम आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं, यकीनन उसके पीछे एक बहुत बड़ा विजन मौजूद है और उस विजन के साथ कर रहे हैं। ये बुक भी जस्ट आपकी मोटिवेशन के लिए आप लोगों के सामने दे रही हूँ। इट वॉज रिटन बाय माई चाइल्ड, माई सन, and when he was in grade 5. So इस वक्त मैं ये देख रही हूँ कि इंशाल्लाह मेहमान स्कूल सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये काम करेंगे, बल्कि इससे भी जल्दी ये काम करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी। ये क्या चीज़ है? ये क्या है मेरे हाथ में? ये कहाँ से आई? ये वो इनकॉम्पिटेंसीज हैं जो हमारी सोसाइटी में हैं। जहाँ से आपकी फ्लैक्स नीचे हुई, मेंटेनेंस की जिनकी जिम्मेदारी थी वो आए और उन्होंने ये लगा दिया। हमने कहा ब्लैक अच्छी नहीं लग रही, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम वाइट लगा देते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस? What is the cost of this? Please think about this. हमारे दीन में किसी भी चीज़ को ज़ाया करने की गुंजाइश नहीं है। वो आपका वक्त हो, वो आपका वक्त हो, वो आपकी चीज़ें हो, वो आपके कपड़े हों, आपकी मोहब्बतें हों, तो प्लीज़ मेरे ये छोटा सा मैसेज अपनी ज़िंदगी में याद रखिएगा कि खुदा का खौफ हर मामले में, खुदा का खौफ आपके सामने हो और चीज़ों को
ज़ाया ना करें, हम जवाबदेह हैं अपने हर अमल के, अपने वक्त को ज़ाया ना करें। प्लीज़ कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ एवरी डे। थैंक यू वेरी मच। I'd like to invite Ms. Naseema and Sananpur. Please come on the stage to give the words. आपकी क्लैपिंग की आवाज आनी चाहिए। HRCA की कंपटीशन के विनर्स को हम लोग बुलाएंगे ताकि वो आएँ और मैम सदर शायद से अपना इनाम वसूल कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर हैदर वहीद। HRCA एक इंटरनेशनल कंपटीशन होता है जो हमारे स्कूल में मैम सदक ने इसको इंट्रोड्यूस कराया कि हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल फॉरम में लेके जाएं। मैथ ओलंपियाड में मैथ का कंपटीशन था और हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें गोल्ड मेडल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल से हैदर वहीद बच्चा है जिसको अभी उसने रिसीव किया मैम से। और आई जस्ट वांट टू शो कि हम अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कोप देना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं अकेली कुछ नहीं कर सकूंगी जब तक आप लोगों का साथ मेरे साथ शामिल होगा। ठीक है, तो बच्चों को अप्रिशिएट कीजिए ताकि हम इस तरह की चीजें करवाते रहें। जिनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, आई वुड लाइक टू कॉल माय सिस्टर फातिमा सर। Second is Mr. Daud. I'm sorry. Second is Mr. Daud and third is Ashar Abdullah. किसको मोटिवेट करती है? मुस्तकबिल हमने बनना है, रोशन चांद तारे का परचम ये ऊंचा रखना है। हर ख्वाब को सच कर दिखाएंगे, अपनी कौम को दुनिया में मनवाएंगे। मेहनतों से मुल्क सजाना है, चांद तारों से आगे जाएंगे। Future of Pakistan, Myanmar, future of Pakistan, Myanmar, future of Pakistan। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मैम सना से क्यों आए और हमारे मौजूद मेहमान ग्रामी मिस सदफ शाहिद और मिस नसीमा कुरैशी को खीर पेश करें एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर एंड चीफ गेस्ट। चांद तारे का परचम ये ऊंचा रखना है, हर ख्वाब को सच कर दिखाएंगे, अपनी कौम को दुनिया में मनवाएंगे। Receive the shield for the chief guest of this event. चांद तारों से आगे जाएंगे। Myanmar, future of Pakistan, Myanmar। Thank you so much, ma'am. जज़ाकल्लाह खैर आपने तलाश कर मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। तो सबसे पहले आप सब पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया कि आज वर्किंग डे है। सबसे पहले मैं इस चीज़ की अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अटैच हैं और ये बहुत मुश्किल काम है कि गवर्नमेंट सेक्टर से छुट्टी लेके
आप आ सकें, क्योंकि आई ऑल्सो हैव बीन वर्क फॉर गवर्नमेंट सेक्टर फॉर 6 years, तो मैं बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को जानती हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी क्लैपिंग की गूंज से इस चीज़ को साबित करेंगे हमारे पेरेंट्स के लिए हम बहुत शुक्रगुजार। थैंक यू सो मच फॉर द प्रेशियस टाइम। अच्छा, और एक क्वेश्चन भी मैं पूछना चाहूँगी कि क्या आप लोगों के लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा? बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे कि अपने बच्चों के लिए इसी तरह इंटरनेशनल फोकस, इसी तरह इंटरनेशनल स्कोप हम करते रहें ताकि हमारे बच्चे स्लोली आगे बढ़ते रहें इंशाल्लाह। अच्छा जी, और इस पूरी मीटिंग को, महफिल को, कॉन्फ्रेंस को 4 चांद लगाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मिसेस सदफ शाहिद साहिबा की। और मैं ये आप लोगों को बताती चलूँ कि सिर्फ CEO लीड नहीं है, ये हमारी मेंटोर हैं, मेरी टीचर हैं, जिन्होंने इस सेक्टर को, इस स्कूल को मुझे किस तरह बेहतरीन अंदाज में चलाना चाहिए वो सारे पॉइंट से आगाह किया और करती रही हैं अब तक, और इंशाल्लाह मैं इनसे गाइडलाइन देती रहूँगी। तो मज़ीद मुझे ताल्लुक़ की गूंज मज़ीद आनी चाहिए, बिकॉज शी इज़ रियली अ करिश्मेटिक पर्सनैलिटी एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल। जी, अब मिस नसीमा कुरैशी साहिबा जो लॉस एंजलिस से यहाँ आई और उन्होंने एक रूरल एरिया में आके इंटरनेशनल स्कोप का काम किया, हमारे बच्चों को इंटरनेशनल स्कोप मिला। मैम सदफ शाहिद के तवस्सुत से वो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैं यहाँ पे, और मुझे उम्मीद है कि उनको आना अच्छा लगा है यहाँ। ठीक है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू एज वेल। आपके आने के साथ ये इतना कुछ पॉसिबल हो सका है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जो एक मैसेज हमारी आज की पूरी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का था, मेरा ख्याल है कि वो सभी बच्चों तक और सभी पेरेंट्स तक बहुत अच्छे तरीके से पहुंच चुका है। हम आज से अपनी इस कैरेक्टर बिल्डिंग जो भी हमारी कैंपेन है इसका आगाज़ करेंगे, घरों में भी, स्कूल में भी, बाहर भी। ठीक है, और अपने बच्चों को बहुत सारी, मैम ने एक छोटी सी बात कही थी कि द वे टू हैप्पीनेस इज अ कॉमन सेंस। तो ये कॉमन सेंस है, हम आप सब ये समझ रहे होंगे, इस बुक को आपने गो थ्रू किया है, आप सब ये समझ रहे होंगे कि ये सब चीज़ें तो हमें जानते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता है, देयर इज नथिंग न्यू, बट देयर इज अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। अ न्यू थिंग ये है कि वी शुड बी इम्प्लीमेंट दिस थिंग। हम इसको जानते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते अपनी लाइफ्स में। हमें अपनी लाइफ्स को, अपने बच्चों की लाइफ्स को बेटर करने के लिए इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंशाल्लाह, और हम करेंगे। आई होप सो, यस इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द ऑडियंस, फॉर स्पेशल गेस्ट, फॉर चीफ गेस्ट, फॉर माय टीचर्स जिन्होंने, जिनके कोऑपरेट से ये सब कुछ हुआ, फॉर द वाइस प्रिंसिपल एंड कोऑर्डिनेटर्स, सब लोगों के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू द डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट सर आसिफ मसूद खान साहब। जज़ाकल्लाहु खैरन, बहुत शुक्रिया। और एक स्पेशल थैंक्स रह गया, मिस आयश पारस जो इस स्कूल का हिस्सा नहीं है, आपके सामने थी आज, सारा टाइम सामने रही है। रीमैक्स से इनका ताल्लुक है, ठीक है, मल्टीनेशनल फर्म है। सिर्फ इस प्रोग्राम को होस्ट करने के लिए और मुझे हेल्प आउट करने के लिए शी इज़ हियर। तो एक जो है वो अप्लॉज इनके लिए ज़रूर होनी चाहिए, जिससे इनको पता चले कि वी आर वेलकमिंग फॉर हर। थैंक यू सो मच मिस आयश पारस। Thank you for the Remax as well. आप सबके आने का बहुत 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 शुक्रिया। बढ़ना है, मुस्तकबिल हमें बनना है, रोशन चांद तारे का परचम ये ऊंचा रखना है। हर ख्वाब को सच कर दिखाएंगे, अपनी कौम
Myanmar, future of Pakistan. Myanmar, future of Pakistan. Myanmar, future of Pakistan.